Hello everyone, so we are given with a question which says the actual value of resistance capital R shown in the figure is 30 ohms. This is measured in an experiment as shown using standard formula R equals to V by I, where V and I are readings of voltmeter and ammeter respectively. If measured value of R is 5% less, then internal resistance of voltmeter is. So we have been given with the value of resistance, that is actual value. It has been given as 30 ohm, and in the next step it says using this formula the value comes out to be 5% less. So let's suppose that value has to be R dash, so it is coming out to be 5% less, that is R minus of R into 5% will be 0.05, or we can write it as 0.95 R. So that comes out to be approximate, or we can say the value comes out to be 28.5 ohms. Alright, so this is what the value of R prime we are getting, that is after it gets 5% reduced. So we can say now the combination, that is the total resistance of both. Let's suppose the resistance of voltmeter has to be X, so we can say the total combination of both the resistance, that is X and R, is coming out to be 28.5. So in order to calculate the value of X, we can just simply apply the parallel combination formula. So we can write now X and R both are in parallel, so their equivalent can be written as, that is R prime will be equals to X into R upon X plus R. Alright, so from here we can say the value of R is 30 and R prime we have calculated it as 28.5. So we can write, so on solving this value we can get the value of X as 570 ohms. So this is the resistance of voltmeter we are getting. So this matches with option 2. So I hope you have understood the concept and thank you for watching. What are correct statements? तो कौन से statements जो है वो correct है? तो सबसे पहला statement है the Wheatstone bridge is most sensitive when all the four resistances are of same order. तो जो हमारी Wheatstone bridge होती है, मैं यहाँ Wheatstone bridge ये ड्रॉ कर देता हूँ. तो ये मेरी चार आर्म्स होते हैं, ये चार आर्म्स बना दिए और बीच में जो है मेरा गैल्वेनोमीटर यहाँ होता है. तो जब ये P, Q, R और S जब सेम ऑर्डर के होते हैं, यानी अगर मैं कहूँ कि ये किलो ओम्स के हैं, तो यानी इंटू 10⁻³ ऑर्डर के हैं. तो जब इस ऑर्डर में होते हैं तो ये अगर किसी भी पर्टिकुलर किलो ओम में है तो सब अगर किलो ओम में है तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव उसी केस में होती है. अगर ये ओम में है और ये किलो ओम में है तो वो उस समय कम सेंसिटिव होती है एज कम्पेयर टू when all the resistances are of same order. तो ये स्टेटमेंट भी वही कहना चाह रहा है, इट मोस्ट सेंसिटिव when all the four resistances are of same order. तो ये पहला हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. और दूसरे में क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी करंट मीटिंग वाला जो लॉ होता है, एक्सप्रेसेस द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चार्ज कंजर्वेशन से ही हमारा ये लॉ बना है. तो ऑप्शन 2 भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. अब ऑप्शन 3 देखते हैं. द रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. तो ये जो है मेरा रियोस्टेट होता है जिसमें एक रेजिस्टेंस होती है और ये जॉकी को हम मूव कर सकते हैं. तो जी हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेजिस्टेंस अलग और यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस अलग होती है. तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है. तो अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट हो गई तो पोटेंशियल भी हमारा अलग होगा, तो हम पोटेंशियल डिवाइडर की तरह यूज़ कर सकते हैं. यानी ऑप्शन 3 भी मेरा करेक्ट ऑप्शन है. अब ऑप्शन 4, इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ द ब्रिज. तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर को यहाँ की बजाय यहाँ लगा दूँ, इस पोजीशन में लगा दूँ, तो क्या इससे मेरा चेंज हो जाएगा ये इसका बैलेंसिंग कंडीशन? तो चलिए देख लेते हैं. अगर मैं गैल्वेनोमीटर को यहाँ से हटाकर यहाँ लगाया, तो अगर इनिशियली यहाँ पर था तो हमारा कंडीशन क्या था, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. अब अगर यहाँ लगा दिया तो अब मेरा कंडीशन हो गया R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q. तो यहाँ हम देखेंगे तो ये मेरा हो गया PS इज इक्वल टू QR.
और इनिशियली क्या था मेरा, इनिशियली भी मेरा था PS इज इक्वल टू QR। तो ये दोनों तो सेम ही रह गई, यानी इंटरचेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह कह रहा है इफेक्ट्स, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी ये हमारा हो गया आंसर ऑप्शन ए। Hello, we are given with a question, and the question says incandescent bulbs are designed by keeping in mind that the resistance of their filament increases with the increase in temperature. Right? If at room temperature 100 watt, 60 watt and 40 watt bulbs have filament resistance R100, R60 and R40 respectively, the relation between these resistances is what? Since we have power to be equal to V square by R, right? This is the relation between power and resistances. So for a particular difference, if for a V to be constant, right? So what we can say is P only depends on 1 by inversely proportional to R, right? So for this, for 100 watt, right, 1 by R100 would be greater than 1 by R60 would be greater 1 by R40, right? Since this power is in descending order, so this is the correct statement. So our answer is option D. Thank you. इस क्वेश्चन में 3 सर्किट दिए हुए हैं और हमें बताना है जो पावर डिसिपिएटेड हो रहा है तीनों सर्किट में, उसमें किस में ज़्यादा है किस में कम है। ठीक है, तो पहले केस में देखेंगे। ओके, तो इस केस के लिए पावर निकालेंगे अगर इस पॉइंट के क्रॉस, तो आ जाएगा B स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं। ओके, ये रेजिस्टेंस को ध्यान से देखेंगे इस, तो हमें पता चलेगा ए रेजिस्टेंस ए चारों के बीच में रेजिस्टेंस लगा है, कुछ ऐसा बन रहा है इस तरीके से। इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको बी, तो इसका डायग्राम बनाएंगे कुछ। तो ए पॉइंट, ओके, और यहाँ बी पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ए पॉइंट से भी 2 जुड़े हुए हैं, और ए पॉइंट से जो एक ए रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है यहीं से दूसरा है, तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखते हैं जो ए पॉइंट से रेजिस्टेंस और बी पॉइंट से रेजिस्टेंस के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो उसको ऐसे बना लेंगे। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसमें करंट जाएंगे नहीं, इसको हटा देंगे, तो आई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इधर का 2 हो जाएगा, 2 ओम, और इसका फिर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर, तो यहाँ पे पावर होगा P इक्वल टू B स्क्वायर 9/1, तो पावर हो गया 9 वाट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि जो 1 ओम सीरीज है में, तो इनका हो जाएगा 2 ओम, इधर भी हो जाएगा इन दोनों को 2 ओम। अभी फिर से देखेंगे ध्यान से, 2 ओम और 1 ओम और 2 ओम, ए हो जाएंगे पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा इसमें 1/112 हाफ। ठीक है, तो P2 अगर निकालेंगे सेकेंड सर्किट में पावर, तो हो जाएगा 9/हाफ इक्वल टू हो जाएगा 18। अभी थर्ड सर्किट में देखेंगे तो ए दोनों सीरीज में इनका 2, ए दोनों सीरीज में 2, अभी ये 2 ओम हो जाएंगे पहले में, तो इनका हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो इसमें आ जाएगा पावर 9/2। ठीक है, तो जो अगर देखेंगे हम कि कौन किस में पावर ज़्यादा है, तो पाएंगे P2 मैक्सिमम है, उसके बाद P1 है, उसके बाद P3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपन लोग का कि P2 मैक्सिमम, फिर P1, फिर P3। यहाँ पे देखते हैं तो बोल रहा है कि एक रिजिड कंटेनर है जो थर्मली इंसुलेटेड है। डैट मीन्स जो कंटेनर का वाल है वो थर्मली इंसुलेटेड है एंड कंटेन्स ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, एंड जो करंट उसके थ्रू कैरी हो रहा है वो कितना कैरी हो रहा है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे पूछा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर 5 मिनट कितना होगा। डैट मीन्स जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा 5 मिनट में वो कितना होगा, हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सिंपल सबसे पहले बोला है कि कंटेनर जो है क्या है, इंसुलेटेड वाला है,
तो उस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ देखें, जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग, डैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जो हीट प्रोड्यूस जो होगा कितना होगा, द हीट प्रोड्यूस, सॉरी हीट इज गिवन बाय एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर एन टू टी। यहाँ पे करेंट 1 एम्पियर है तो 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 100 ओम गिवन है, एन टू क्या बोला है 5 मिनट पे, तो 5 इंटू कितना कर देंगे 60 जो सेकेंड में हो जाएगा। डैट मीन्स यहाँ से अगर देखें तो कितना हुआ 100 इंटू 300, डैट मीन्स यहाँ से कितना आ गया 103 एंड 4 जूल। तो अगर इसको हम किलो में कन्वर्ट करें किलो जूल में तो कितना हो जाएगा 30 किलो जूल। ये हमारा आंसर हुआ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देख रहे हैं वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। Hello everyone. So the question is, when a potential difference is applied across the current passes through, they have given us the four option in an insulator at 0 Kelvin is 0. We have to tell whether it is correct or not. A semiconductor at 0 Kelvin is 0. Third option, a metal at 0 Kelvin is finite. A PN diode at 300 Kelvin is finite if it is reversed bias. So we have to check all these four questions and then give our answer where these are correct or not. So now let's proceed with the solution. Our option A is an insulator. As we all know that at 0 Kelvin, a perfect insulator does not permit any current to flow through it. So we can say that option A is correct, as at 0 Kelvin insulator does not permit any current to flow through it. So current will be 0. So option A is correct. Now we will check it for the second option. What second option says? Second option says a semiconductor at 0 Kelvin is 0. So we have to check what will be the value of current for a semiconductor at 0 Kelvin. So as we know that at 0 Kelvin semiconductor behaves as an insulator, behaves as an insulator, hence it will not permit any current to flow, hence it will not permit any current to flow through it. So current will be 0. So current is 0. So we can say that option B is correct. Now we come to the third one option. Third option says a metal at 0 Kelvin is finite. So now we'll check for the metal.
So what happened in case of metal? The current flow will be very high because a metal becomes superconductor at 0 Kelvin. In case of metal, the current flow will be very high because a metal becomes a superconductor at 0 Kelvin. And we also know that resistance of a metal is directly proportional to the resistivity, which is proportional to the temperature. As temperature approaches 0, then what will happen? R will approach to 0 and the current flow will be infinite. So now we will come on to the last option, that is the D option. A p-n dipole at 300 Kelvin is finite if it is reversed biased. Okay, so option C is incorrect. Now we'll talk about the D option. So what will happen in a reverse bias? Very small current will flow, and this is because of the minority charge carrier. So option D is correct. In reverse biased very small current will flow because of minority charge carrier. So option D is correct. So these were our answers. Thank you.